So till now we have studied about two laws. One second, let me adjust this slide. Okay. Law of chemical composition we have studied. Law of constant properties we have studied. Proportion, sorry. And today we will be studying about Dalton's theory, atomic theory. Okay. सर आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। Recording, you people understand this one thing. I'm not recording here for the good quality. I'm in one separate recorder which is recording whole screen. One separate. I will be uploading. Actually, I have promised with you that I will upload. तो this week I will upload all the video channel. उसका नाम है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या नाम मेरे YouTube चैनल का। दोबारा से बता दूँ, आई हैव चेंज माई नेम ऑफ दिस चैनल. यू कैन सी देयर. ओके. Okay, this is the name, Sayer Singh the biologist. Actually I love my subject. The person who are working in the field of biology, they are known as what? Biologist. Physicist are there, chemistry वाले. तो इस तरह से हम ये नाम है मेरे चैनल का. View there. So very soon in this I promise that I will upload the channels here. Okay, use here. Okay. So no need to go there. I will upload the same here. Your data, your and mine data conserved in this app. So what is saying? Matter is made up of type called atom. This atom. जैसे मेरे पास मान लो ये पेन है, इस टुकड़ा करूँ, इतना टुकड़ा करूँ, तो छोटे से छोटा पार्ट होगा दैट वी कैन नेक्ड आई विद नेक्ड आई इज. तो ये मैटर है. ये पूरा क्या है? मैटर है. इसमें 2-3 मैटर हैं इसके अंदर. सम प्लास्टिक इज देयर, सम मेटल इज ऑल्सो देयर, सम एलोई इज ऑल्सो देयर. एलोई मीन्स मिक्स ऑफ 1 or 2, mix or 2 or more than 2 metals. So many things are there. So every metal, non-metal metal, any matter which is present on this is tiny particles. The tiny particles are known. उनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. ठीक है. यानी इसका छोटे से छोटा पार्ट ये होता है. एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते. वो लास्ट चीज है जो आपसे टूटेगी नहीं किसी. एंड कैन और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. आप उसकी कोई केमिकल रिएक्शन न तो आप नया बना सकते हैं, और आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यानी ये ऐसी चीज़ है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. चेंज द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं. क्या आप हाइड्रोजन के एटम को नहीं तोड़ सकते आप. हाँ, हाइड्रोजन के आप हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलाकर आप एक मॉलिक्यूल जरूर बना सकते हैं आप. यहाँ हमने क्या किया? 2 हाइड्रोजन के एटम्स को मिलाया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया. सॉरी. Have you any of this hydrogen atom or created new atoms? Anything is not created nor destroyed here. Okay. Cannot divide them into different. यानी इसको और ज़्यादा पार्ट्स उसके नहीं बना सकते. Okay. Next thing, atoms are even element are in similar. एक एलिमेंट है मान लो हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है. तो इसका एलिमेंट क्या हुआ बेटा? ये तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे पास एटम क्या हुआ? ऑक्सीजन. यानी एक
एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट एक ही है, इसका अगर एक एटम देखें तो वो है O, यानी O2 का एक एलिमेंट O है, O है, क्या है? O है, ऑक्सीजन। उस अगर देखते हैं तो उस एलिमेंट के सभी एटम्स, चाहे कितने ही नंबर हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, वो सभी के सभी दे आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। उनका मास सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टी जो भी होती है, प्रॉपर्टीज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके ओके। फोर्थ थिंग्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट। अब इसको एग्जांपल लेता हूँ मैं, these things. Okay. Imagine I have taken the molecule of H2O. Here beta, atoms are there here beta. How many atoms are there? Two. One is hydrogen. Another one is three actually. Not three actually. Count the number. Don't count the number. How many types of atoms are here? Hydrogen, one atom. Oxygen, one atom. That is different thing. We are using here two atoms of hydrogen. But types कितना है, प्रकार कितना है, एक ही है केवल. This is only hydrogen on oxygen. So what the fourth line is saying, different elements have different masses and properties. Hydrogen will be having its unique mass and oxygen will be having some different mass and properties from this hydrogen. यानी हाइड्रोजन और अपनी मासेज होंगे और प्रॉपर्टीज होंगी तो एक दूसरे से अलग होंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर एक एलिमेंट के कितने भी एटम्स हैं वो सब सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, एटम्स कंबाइन इन टू फॉर्म कंपाउंड। ये कुछ नंबर में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड। दिस H2 इज व्हाट? कंपाउंड। So in formation of this one, what is here? One second. H plus oxygen. Okay, 1 second. H plus O. So these three atoms, two from hydrogen, combined, ये कह रहा है रेशियो में फॉर्म होते हैं। दो हाइड्रोजन एक will be combining and they will form one compound. This H2 is a compound. ये कंपाउंड यहाँ पे बनता है। ओके, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो कि हाइड्रोजन में एक बार तो 2 आया, 2 एटम आए और अगले में 3 आ गए या 4 आ गए या 1 हो गया, ऐसा नहीं। ऑल एज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, H2 molecules will be having 2 hydrogen atom. Every H2 molecule remains constant मतलब स्टेबल रहता है ये नंबर, ये कभी बदलता नहीं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन is having 2 oxygen molecules, 2 oxygen atoms. All the oxygen molecules will be having atoms of oxygen. Clear? Atomic theory is clear to you. Is there any problem till now? Yes, students. Okay. Then big is atom. Here we will be discussing about what is atom. Okay. And smallest is the smallest atom, सबसे smallest, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है। ये जैसे सिंबल है हमारा, अभी आगे और आएगा तब आपके क्लियर होगा। जैसे कार्बन, मैंने लिखा है कार्बन, तो कार्बन एक एलिमेंट है। उस कार्बन को अपन कैपिटल C से शो करते हैं। इस एलिमेंट
यानी इसके जित एक एटम हो सकता है, इसके दो एटम कंबाइंड हो सकते हैं, उसका एलिमेंट का दैट इज स्मॉलेस्ट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो या तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और नहीं भी रह सकता है। एंड रिटेन केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसका जितनी भी रिएक्शन करने का तरीका है, कितने अदर एटम से कंबाइंड भी प्रकार की जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं दे आर मेंटेन। बट एक लाइन यहाँ पे लिखी है मे और मे इंडिपेंडेंटली, मे यानी और नहीं रहे कि कुछ एटम्स जो किसी अगर अलग नहीं जुड़ेंगे तो उनका कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो हो सकता है कि किसी अपना इंडिपेंडेंट अपना कोई अस्तित्व दूसरे के साथ जुड़ के रखते ऐसे होते हैं जो अपना अस्तित्व रख सकते हैं। एटम्स आर स्मॉल इन साइज देन एनीथिंग वी कैन यानी बहुत छोटे और इतने होते हैं, और इतने हम इमेजिन जितना कर पाएँ उससे भी छोटे हो सकते हैं। कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा हो सकता है। कैन यू इमेजिन यस कैन यू इमेजिन हाउ मच स्मॉल दिस एटम कैन बी। हम इमेजिन नहीं कर सकते उसकी एटॉमिक का मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसका अगर डायमीटर मैं लेता हूँ तो ये डायमीटर कितना आता है कोई भी एटम का 10 की पावर 9 मीटर, यानी ये हो गया नैनोमीटर। एनएम मतलब नैनोमीटर। अब ये क्या इंडिकेट करता है, देखो अगर आप क्या चीज़ है हाँ सभी एटम का इतना ही होता है बेटा। डिफरेंट हो सकता है थोड़ा मॉलिक्यूल बन गया, या फिर बहुत स्मॉल साइज होते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है एक, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होता है अलग अलग में। जैसे 10 की पावर हो सकता है, 10 की पावर -10 भी हो सकता है। ये डिफरेंट होता है। तो इसको कैसे अपन सोच सकते हैं, 3 3 6 और 3 9, यानी एक को आप कितने से डिवाइड करो, इतने पार्ट से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर आप 1 को 1 अरब से डिवाइड करते हैं और जो जितना मीटर की वैल्यू आती है उससे छोटा ही एटम होता है। अगर आप 1 को करते हैं अरब से डिवाइड करते हैं तो आप सुना छोटा हो सकता है, जो अपने को आंख से दिखाई देने का तो मतलब ही नहीं है। एक सैंड के पार्टिकल को छोटा समझ, इसमें पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा हमारे क्या हो सकते हैं यहाँ पर ये एटम। ठीक है, तो एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 की पावर माइनस, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रेडियस जो है वो कितनी है 10 की। यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पर एक्चुअली क्या नहीं, ये रेडियस है, सॉरी रहेगा। ठीक है ना। यानी ये किसकी बात कर रहा है, लेट मी रब दिस थिंग। हाँ बेटा, जैसे इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस इतनी आएगी 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है ना। अलग अलग जैसे हाइड्रोजन की 10 की पावर -10 है एक वाटर के मॉलिक्यूल की। ठीक है ना। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस, और 1 मीटर को अगर बोलते हैं तो 10 की पावर 9, उसमें प्लस का साइन है। ठीक है, क्लियर है। कुछ बोलिए बेटा। यस कुछ पूछना है बेटा।
atoms of different elements represented by letter अपने A to Z जो लेटर्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं. द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट जो है एक लेटर से उसको ठीक है ना एंड सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स. जैसे आप देख रहे हैं बोरोन है, बेरियम को अपन 2 लेटर से कर रहे हैं, उसका सिंबल है. अपन पूरा नाम नहीं लिखते हैं, फिर उसका सिंबल लिखने में टाइम कम लगता है और जानकारी भी हमें बनी रहती है कि ये इसका सिंबल है, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई और वी डोंट नीड टू राइट द फुल नेम ऑफ. इफ द सिंबल Excuse me, sir. यस बेटा. सर हाँ देखो उसमें क्या है ना, आई किसके लिए आ गया बेटा, आयरन के लिए आ गया ना. पहले खोजा था उसका जो है वो आयोडीन को दे दिया. किसको दे दिया बेटा, आई दे दिया. तो अब आयरन को आई दे, तो अब आयरन दे सकते हैं. तो इस तरह से यार भी नहीं है, वो भी एक डिफरेंट एलिमेंट का है बेटा. कुछ नाम ऐसे है तो पहले दे दिए गए, वो पीरियोडिक टेबल उनको अरेंज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस में उनको दिया गया नाम जिस आ गया मान लो, तो उस हिसाब से वो नाम वहाँ से छोड़ दे गए उसको नाम को कंफ्यूजन की वजह से. IR भी कहीं पे IR भी एक जगह आता है नाम इसमें. ठीक है ना ओके ना बेटा. क्या चीज़ है सर वो दूसरी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो ABCD हाँ वो लैटिन वर्ड से लिया. जो इस प्रकार के जिनका खुद का है लेटर नहीं आ रहा है, वो साइंस के जितने भी होते हैं वो ग्रीक या लेटर से अपन उनके उसी लैंग्वेज से लेते हैं. ओके. इफ द सिंबल हैज ओनली 1 लेटर इट्स लेटर, or if the symbol has 2 letters then the first and second should be smaller letter. जैसे मान लो एल्यूमिनियम है हमारे पास में, हम कैसे लिखते हैं ALLMINI. ठीक है, तो लेटर कौन से हैं, A है और L है. if we are writing the letter in the form 2 letters, then first letter will be capital and smaller, second small होगा. यहाँ पर जैसे बात करते हैं अपन, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक सेकंड है टेस्ट नहीं हुआ क्या यहाँ पे. लेट मी कॉपी दीज थिंग्स. कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है. एस कौन का क्या है, SI है, तो क्या सीधे क्या नहीं रख सकते. में AG वर्ड उसका रखा है. तो जिनके 2 लेटर्स आ रहे हैं उसी का लेटर जो है वो स्मॉलर होगा. हाँ जी ले सकते हैं ना. क्या चीज़ है. हाँ जी हम तो फर्स्ट फर्स्ट नहीं ऐसे नहीं कर सकते अपन. ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, फिर वो कंफ्यूजन बहुत भयंकर हो जाएगा. फिर वो अपन क्या है उसको प्रिपेयर करते हैं, अगर वो नाम पहले से है तो दूसरे अपन लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से उसका नाम ले लेंगे. बोरोन का जैसे एक लेटर है B है, ठीक है ना. ब्रोमीन का जैसे, तो बोरोन का हमने सिंगल रख दिया है, B रख दिया है यहाँ पे, ओनली सिंगल लेटर, तो वो कैपिटल में होगा. क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक क्लियर. इज इट क्लियर. यस सर. No, sir. Tomorrow we will atomic mass. Okay.